Hi everyone. So we are now discussing with the details of the terrestrial ecosystem. Now we have already seen all the basics that you could have covered, the definitions, the concepts, everything, right? Every minute detail I've given you, the PYQs I've attached from different examinations. So I don't think you should have any problem in those kind of questions. Now we are transitioning basically to that advanced stage wherein now we'll learn about the concept of the terrestrial ecosystem in detail. You have already done the background because ecosystem was a level of organization in ecology. So that one level is already done. Now we have to see the details of this ecosystem, and you know that we call it as biome. So here if you see this image, I have already shown you in that previous video also when we were discussing about that ecosystem. So you see that on the basis of the temperature and the precipitation, you have different kinds of system. For example, desert है, grassland है, forest है, arctic and alpine tundra है, ठीक है. So similar goes here also. This is the same image just portrayed in a different way. That here it is wet and decreasing moisture is here, so dry. So you understand कि desert dry में होगा. यहाँ पे ये रिवर्स था, डेजर्ट इधर इसलिए है बिकॉज हियर यू आर सीइंग कि प्रेसिपिटेशन इज इंक्रीजिंग दिस वे. तो ये प्रेसिपिटेशन यहाँ कम है, इधर ज़्यादा हो रहा है. यहाँ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा यहाँ है, इधर कम हो रहा है. जस्ट दिस इज द केस, राइट. Then here the temperature is more and it is decreasing here. So you have the colder ones like Arctic tundra here. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे द टेम्परेचर इज लेस हियर एंड मोर देयर. तो वो डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन देम. नाउ इफ़ यू सी द डिटेल्स ऑफ दिस यू विल सी कि एक तो आपका टुंड्रा है, वन बायो. Then you see another is taiga, but this is a kind of forest only. So then another is forest only. Then you have the grasslands, then you have the deserts. So basically 4 kind of things is what you can see here. One is your tundra, then we have the forest, then we have the grassland and the desert. तो यही चारों को हम डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे in different classes about the terrestrial ecosystem. Now let's go for the write-ups. Okay, this is a map which shows you the distribution in the world of different kinds of biomes. So you can just take time, and because it is so colored and very much clearly visible, and you have the notings here also. So आप इसको आराम से टाइम देके अभी बाद में देखिएगा. For the time being we'll just go for the written details so that you understand what it is, and then maybe we can refer the map as and when the time comes. So firstly, you understand that moisture and temperature. ठीक है, इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, इफ़ यू जस्ट कॉल दीज टू फैक्टर्स, सो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. नाउ द if you have to write like why do you call as biomes, so you have to remember that biomes are basically the terrestrial मतलब जो land पर है. So terrestrial part of biosphere, because the oceanic part is not covered in this. Oceanic ecosystem भी है which we will cover in the further classes, but that is not called as biome. The term biome is only used for those ecosystem which are terrestrial in nature, land पर जो हैं. ठीक है, ओके. सो दिस मच इज आई थिंक शुड बी नाउ क्लियर. तो अब हम कुछ की डिटेल देखने की कोशिश करेंगे इन दिस क्लास. द रेस्ट वी विल डू इन द फर्दर क्लास. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द टुंड्रा इकोसिस्टम. ठीक है, टुंड्रा में क्या होता है? बेसिकली बहुत ज़्यादा सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में है. आप देख ही सकते हो टुंड्रा जो है, आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा. If you see here, this is the color coding for that. So you know these और colder regions वाले जो हैं वो सारे आपको टुंड्रा दिख रहे होंगे. ठीक है, ऊपर में भी यहाँ पर you are seeing cold में है टुंड्रा. ठीक है, the same goes for this also, alpine tundra, arctic and alpine tundra. So basically टुंड्रा में क्या है कि this is divided into 2 types of ecosystem, arctic and alpine. Okay. अब यहाँ पर क्या है? सो आर्कटिक टुंड्रा जो है दैट इज द कंटिन्यूअस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप.
ठीक है, ऊपर बिल्कुल पोलर आइस कैप है, उसके नीचे एक कंटिन्यूस बेल्ट है, एंड अबव द tree line in northern hemisphere. Now you have come across a new term, tree line here. I'll explain it in some time. So if you just based on the map you see, so you can see कि कहाँ कहाँ पर मौजूद है. It is present in the northern fringes of let's say Canada, Alaska, European Russia, Siberia, you know Arctic Ocean के जो islands हैं वहाँ पर. If you notice towards the south, you will not find much of it. The reason being that here the southern hemisphere is mostly covered with ocean, right? So इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, स्मॉल टुंड्रा प्रेजेंट होता है, तो उसको हमें ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है. नदर्न फ्रिंजेस जो है दैट यू विल टेक केयर ऑफ. नेक्स्ट इफ यू सी अल्पाइन, I'll talk on this in some time. So here it is found at high mountains. They both are known as tundra only. So it is at high mountains above the tree line. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हाई माउंटेन्स है तो सम एग्जाम्पल इफ यू से हाई रेंजेस ऑफ हिमालयाज, एल्प्स एट्सेट्रा. ठीक है, एंड दिस इज प्रेजेंट एट all latitudes. Now you have come across the term tree line again here, so just giving you a definition for the same. Now you have understood the location of the Arctic and the alpine tundra. Tree line is basically the edge at which trees are capable of growing. ठीक है, जिस edge पर ट्रीज जो है उतने ही लिमिट तक वो ग्रो कर पाएंगे, एंड बियॉन्ड एनीवेज द लाइन इज काइंड ऑफ यू कैन से यू नो डिमार्केटिंग लाइन. सो इट इज़ द एज जहाँ तक ट्रीज ग्रो कर पाएंगे, एंड बियॉन्ड दिस लाइन द ट्रीज कैन नॉट tolerate the environmental condition, be it temperature, moisture, whatever it is, but the trees will not be able to tolerate the condition and they will not be able to grow. ठीक है, इसीलिए अब ट्री लाइन का कॉन्सेप्ट आई थिंक शुड बी क्लियर टू यू. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि द काइंड ऑफ वेजिटेशन वुड बी वेरी डिफरेंट हियर इन द टुंड्रा इफ़ यू से सो. तो व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन इज हियर? स्पार्स प्रेजेंस, मतलब बहुत कम, नाम मात्र के लिए होता है स्पार्स प्रेजेंट ऑफ, एंड दैट टू लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन. आपको जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं वो यहाँ पर ईजिली नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. सो लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन. ठीक है, एंड समथिंग लाइक मॉसेस, लाइचन्स जो है आपको बेयर रॉक्स पर ये मिलेंगे. ठीक है, उसके अलावा अगर आप एनिमल्स की बात करते हो तो यू हैव सम एनिमल्स जो कि स्पेशली यू नो कोल्डर रीजन्स में रहते हैं. सो यू हैव रेनडियर, स्क्विरल, पोलर बियर, मस्क, ऑक्स एट्सेट्रा. ठीक है, if you talk about let's say the animals like reptiles or amphibians, you will not find much of them. So they are almost absent actually, and they are almost absent. And the kind of animals which will survive here, of course they have to get themselves protected from the cold. So they are protected from the cold due to presence of thick cuticle and epidermal hair और fur. So उनके बॉडी पे कुछ इस तरह के चीज़ें जो हैं आपके प्रेजेंस होंगी, इधर हेयर और फर और सम अदर काइंड ऑफ लेट्स से यू नो यू वुड से द स्ट्रक्चर और द सरफेस ऑन द बॉडी विच विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. अगर मैमल्स की बात करते हो आप तो इनका क्या होता है, बॉडी साइज़ बहुत बड़ी होती है, बॉडी साइज़ इज़ वेरी लार्ज, एंड जो इनके आपके ईयर्स होते हैं स्मॉल ईयर्स होते हैं. द रीज़न बीइंग ताकि दे कैन अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द surface.
ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस केस में. दिस इज अबाउट द आर्कटिक और लेट्स से द टुंड्रा. So this was the first kind of terrestrial biome that you will have to remember, that was tundra. Tundra में then you had two types, आपका arctic and alpine. Moving on to the next kind of an ecosystem, that is your forest ecosystem. Now in the forest ecosystem again you will have different types. One will be your let's say coniferous forest, then temperate and the tropical forest. ठीक है, इसमें भी हम तीन मेजर करेंगे, coniferous, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल. चलिए, अब यहाँ पर भी डेफिनेटली द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वुड बी लाइक योर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं. अब फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉनिफरस, जिसको टाइगा या बोरियल भी बोला जाता है. ठीक है, ये बायोम भी इसको बोला जाता है. अब इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है. सो हियर यू सी ऑफ कोर्स द कोल्ड रीजन्स में है. अगर आपको मैप पे देखना है तो आई जस्ट शो यू. ठीक है, यहाँ पर कॉनिफरस फॉरेस्ट या टाइगा, ये जो रेडिश थोड़ा सा रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट is there, and here also you see the term taiga here. ठीक है, जो coniferous forest है ये भी आपको दिख रहा होगा. So that is a kind of forest that will come in the forest category of the ecosystem. यहाँ पर फिर क्या है, so cold regions हैं, high rainfall है, long winters है, short summer है. If you talk about the vegetation, so evergreen vegetation जो यहाँ पर present है, कुछ trees आपको नाम याद रखने होंगे. They ask you the questions on these things: spruce, fir, pine trees, etc. If you talk about the animals, wolf, bear, squirrel, some amphibians are also there like hyla, etc. If you talk about the kind of soils which are present in such kind of a forest system, तो यहाँ पे पुअर क्वालिटी की सॉइल होती है और उस टाइप ऑफ सॉइल को बोलते हैं पॉडजोल्स. So you will have to remember this term, that this is a typical kind of a soil which is found in the coniferous or the boreal biome. ठीक है, और इतना ज़्यादा थिन होता है ना कि यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट कुछ भी इस सॉइल में ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है. बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल भी होता है, लो pH होता है इसका, बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑफ लीचिंग. रिमूवल जो है उस सॉइल से जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका रिमूवल हो जाता है. So you have to remember this point, that this is a very poor kind of a soil. And यहाँ पर जो podzol term use किया गया है, that is specifically in the context of the coniferous or the boreal biome that you need to remember. So based on whatever you have understood by far, anyways you will understand that this kind of an ecosystem will have lower productivity than other forest ecosystem. क्योंकि जब सॉइल ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा या फिर सॉइल ही उतना अच्छा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि दिस विल नॉट हैव दैट मच ऑफ अ प्रोडक्टिविटी. सो दिस इज़ अबाउट द कॉनिफरस और द टाइगा और द बोरियल बायोम. देन आई हैव गिवन यू द टेम्परेट काइंड ऑफ फॉरेस्ट एंड देन ट्रॉपिकल पे आते हैं. तो पहले बात करते हैं टेम्परेट काइंड ऑफ फॉरेस्ट्स की. सो आई जस्ट गिव यू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ देम. टेम्परेट फॉरेस्ट्स में भी यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट. So one is your temperate deciduous forest. किसी भी तरह के deciduous forests की जो क्राइटेरिया होती है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज़ मेनली अबाउट कि क्या हो जाता है इस चीज़ में, दे शेड देयर लीव्स. ठीक है, सो यहाँ पे आपको याद रखना है. सो हियर व्हाट विल हैपन इज़ कि द टेम्परेट फॉरेस्ट जो है उसमें किस तरीके का मेनली उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, दैट इज़ यू वुड से कि चलिए
मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो डेसिडुअस ट्रीज रहेंगे दे आर वेरी ब्रॉड लीव्ड, सो यू हैव टू रिमेंबर किस तरह के ट्रीज रहते हैं। ऑल्सो दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम, और कंप्लीटली शेड जो हो जाता है, ठीक है, वो विंटर में हो जाता है। सो यू कैन से दे आर बेयर ओवर विंटर, मतलब बिल्कुल लीव्स जो है वो शेड हो चुकी होती हैं। एंड देन ग्रो न्यू वंस इन द स्प्रिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन रहता है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन रहता है। सॉइल उसी तरह का रहेगा आपका, ठीक है, पुअर, स्लाइटली पुअर, काइंड ऑफ यू नो पॉडजोलिक जो हमने यहाँ पर देखा, काइंड ऑफ उसी तरीके का सॉइल जो है वो रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। सो दिस वी आर डूइंग विद इन द हेडिंग ऑफ टेम्परेट ओनली, प्लीज़ बी क्लियर विद दैट। सो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की बात करें ना, यहाँ पर these are found in those regions of the world wherein you see the Mediterranean kind of climate, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि आपका वार्म ड्राई समर्स, और अगर विंटर है सो यू हैव कूल मॉइस्ट विंटर्स, ठीक है, ये यू हैव टू रिमेंबर। ऑल्सो यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उनके जो लीफ रहती है, सो दे आर लो ब्रॉड लीफ्ड, इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ऊपर जितना ज़्यादा ब्रॉड है इतना ज़्यादा नीचे नहीं रहता है। नाउ हियर देयर इज़ सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू फायर, क्योंकि इस जगह के लोकेशन में थोड़ा फायर को लेके इशू हो जाता है। बट इवन इफ देयर इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू फायर, द ट्रीज आर लाइक दैट दे कैन रीजनरेट देमसेल्व्स, इवन इफ दे आर लेट्स से बर्न्ड, वापस से वो खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। सो टेम्परेट में हमने देखा डेसिडुअस फॉरेस्ट, देन एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन विद इन टेम्परेट ओनली द थर्ड काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज योर रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। सो हियर व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यहाँ पे हाई रेनफॉल होगा, ये तो नाम से ही आपको समझ में आएगा। सो यू गेट टू सी दी हाई रेनफॉल, ठीक है, हेवी फॉग हो सकते हैं यहाँ पर, और रेनफॉल है तो ऑफकोर्स वाटर सोर्स जो है वो बहुत अच्छा रहता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी हाई रहती है, क्यों, बिकॉज एंड दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, लाइक वन लाइनर में दे गिव यू सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो इनकी बायोटिक, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन हियर, सो बायोटिक डाइवर्सिटी जो है वो हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू एनी काइंड ऑफ अदर टेम्परेट फॉरेस्ट। लेकिन अगर आप बात करोगे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, वो थोड़ा सा लो होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर फॉरेस्ट। एज इन, इसका क्या मतलब है, जब आप ट्रॉपिकल करोगे, अभी वी विल टॉक ऑन द ट्रॉपिकल, अभी यू नो दिस वाज द डिस्कशन ऑन द टेम्परेट फॉरेस्ट्स, राइट। अभी व्हेन वी विल टॉक ऑन द ट्रॉपिकल, सो ट्रॉपिकल में भी यू विल कम अक्रॉस द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो एज कम्पेयर टू देम द डाइवर्सिटी इज लो, बट द बायोडाइवर्सिटी इज हाई as compared to other temperate forest. So comparison आप किसके सेंस में करो वो भी important है ना, नहीं तो फिर the whole meaning will change. But low diversity as compared to tropical rainforest. ठीक है, I hope it should be clear now. ठीक है, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्परेट वंस। नाउ वी विल टॉक ऑन द ट्रॉपिकल वंस, ठीक है। अब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स की बात करते हैं। सो ट्रॉपिकल में द फर्स्ट सब टाइप दैट वी विल कवर वुड बी द रेन फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में क्या है, सबसे पहले ये कहाँ होगा, ट्रॉपिकल रीजन में होगा। सो विच मीन्स tropical rainforests will occur near the equator, then they are among the most diverse communities, अभी हमने देखा। so most diverse and rich, क्योंकि यहाँ पे रीजन ही ऐसा है, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन सब सही है,
and temperature and humidity remain high, definitely हाई टेम्परेचर एंड मोस्टली यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है तो सन की रेज तो आती रहेंगी उस हिसाब से. यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअली यू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स व्हेन यू डू द नेचुरल वेजिटेशन कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी, विच आई विल ऑफकोर्स टेक इन डिटेल. अभी तो आपको सिर्फ बायोम कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझने, द रीजन्स ऑफ वाई दीज थिंग्स हैपन वो आप तभी समझ पाओगे जब हम ज्योग्राफी में उसको कवर करेंगे. देन एनुअल रेनफॉल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है सही से, ठीक है, जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, एज इन ऐसा नहीं किसी टाइम पे बहुत कम ज़्यादा. तो यू विल से डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल. देन डाइवर्सिफाइड फ्लोरा फोना तो हमने बात कर ही लिया. डेंस वेजिटेशन बिल्कुल रहेगा बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड यू नो द टेम्परेचर हियर. सो एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन रहती है और इससे क्या हो जाता है कि ऊपर जो रहते हैं ट्रीज वो बहुत बाकी चीज़ों से कवर हो जाएंगे, नो बिल्कुल दे विल हैव अ लेयर बिकॉज डेंस रहता है वेजिटेशन. और लोएस्ट लेयर तक आते आते आपके श्रब्स हर्ब्स वगैरह वो हो जाते हैं. अगर आप बात करते हो सॉइल की, सो डेफिनेटली थिक सॉइल रहेगी यहाँ पे, पुअर सॉइल तो नहीं रहेगी, इतना अच्छा ग्रोथ रहता है, ठीक है. अब प्रॉब्लम एक चीज़ है यहाँ पर, द प्रॉब्लम इज़ अबाउट द हाई रेट ऑफ लीचिंग. लीचिंग से क्या हो जाता है, बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स आर रिमूव, ठीक है, द सॉइल इज थिक बट द हाई रेट ऑफ लीचिंग इज़ अ प्रॉब्लम. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हाई रेट ऑफ लीचिंग, रिमूवल हो जाता है, which makes these soils useless for the agriculture purposes. So useless for agriculture purposes क्योंकि nutrients ही नहीं रहते हैं. और nutrients, leaching is like you can say you know removal because of let's say water or some other agent. So if the nutrients will not be there, how will the agriculture purpose will be solved, ठीक है. लेकिन अगर इनको कुछ वक्त तक if you leave them undisturbed for a certain point of time, then नेचुरली न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिसाइकिल हो जाती हैं बिकॉज डिकम्पोजिशन वगैरह होता है ऑर्गेनिजम्स का उस पर, तो वो फिर धीरे धीरे उस चीज़ को कंपेंसेट कर लेता है. एंड यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है अंडर ग्रोथ में. अंडर ग्रोथ एज इन लेट्स से ट्री की जो ये आपकी कैनिपी होती है ऊपर वाला एरिया, तो ये तो बहुत ही थिक होता है. सो द सनलाइट इज़ नॉट एबल टू पेनिट्रेट टूवर्ड्स द डाउन. सो देयरफॉर अंडरग्राउंड ग्रोथ जो है, या फिर सॉरी नॉट अंडरग्राउंड बट अंडर ग्रोथ जो है दैट इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड. एंड ऑफकोर्स द रीज़न इज़ दैट लैक ऑफ सनलाइट. लैक ऑफ सनलाइट नॉट एट द टॉप बिकॉज ट्रॉपिकल है तो सनलाइट तो होगा ही, बट लैक ऑफ सनलाइट एट द ग्राउंड लेवल. So these are some characteristic features of the tropical rainforest. Now within tropical only, then the other kind of forests are your seasonal forests. So tropical seasonal forests. What about them? So they are also called as monsoon forest. क्योंकि monsoon season में रहेंगे तो they are also called as monsoon forests. और जहाँ पर ये ऐसे ही regions में पाए जाएंगे जहाँ पे total annual रेनफॉल जो है वो वेरी हाई रहेगा. आपका साउथ ईस्ट एशिया का रीजन हो गया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका हो गया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल आइलैंड्स ऑफ Pacific and India. Some examples of the seasonal forest, location of the seasonal forest. Then another category of tropical में kind of बोल सकते हैं, actually not a very core category but a kind of sub category जिसको आप बोलोगे सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले रेन फॉरेस्ट्स. सो हियर यू से ब्रॉड लीफ तो रहेंगे ही, evergreen भी रहेंगे. evergreen would be like they will not shed their leaves and deciduous are like जहाँ पे वो अपनी leaves को shed करते हैं, ठीक है. सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब ये कहाँ पे रहेंगे, डेफिनेटली हाई रेनफॉल वाले रीजन में तो रहेंगे ही, लेकिन वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट देयर शुड बी लेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन विंटर एंड समर, ठीक है. ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.
One common example of such kind of forest is epiphytes. और एनिमल लाइफ इज़ वेरी मच सिमिलर टू दी अदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है. ठीक है. So we have discussed about the two types of vegetation. One is your forest. Now within forest we have done a lot, but one is forest and another is your tundra. ठीक है. तो हमें 4 मेजर करना है. आपको बता दिया मैंने. टुंड्रा करना था, फॉरेस्ट करना है, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट. ठीक है. उसी में सब टाइप्स हो जाएंगे. दैट इज डिफरेंट थिंग. सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल कीप डिस्कसिंग अबाउट ग्रासलैंड एंड द डेजर्ट. So see you guys in the next video. Thank you so much. Till then, bye bye. Take care.